নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিশেষ আধা ঘণ্টা এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো মই আইসেং ভাই আপোনালোক সকলোকে আজি আমি এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছো আৰু আজি আমি এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিবৰ বাবে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছো আজি আমি ধ্যানৰ ওপৰত কথা পাতিম ধ্যান অৰ্থাৎ মেডিটেশন সময়বোৰ খুব ব্যস্ত সকলোৱে খুব যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত বসবাস কৰি আছো সকলোৰে যথেষ্ট মানসিক চাপ আছে চিন্তা আছে হতাশা আছে আশা আকাংক্ষাবিলাক সকলোৰে বাঢ়ি গৈ আছে যাৰ বাবে বহু সময়ত বহুতৰে মনবোৰ বেয়া হৈ যায় এনেকুৱা সময়খিনিত ধ্যানৰ খুব প্ৰয়োজন আজিৰ এই সময়ছোৱাত এই যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা অকণমান শান্তি পাবৰ বাবে ধ্যানৰ কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেই সন্দৰ্ভতে আজি আমি কথা পাতিম ধ্যাননো কি হয় ধ্যান কেতিয়াৰ পৰা চলি আছে আৰু অসমত ধ্যান এই বিষয়টোৱে কিমান প্ৰচাৰ বা প্ৰসাৰ লাভ কৰিছে বা কিমান কৰিব লাগিছিল এই সন্দৰ্ভত আজি আমি কথা পাতিম আজি আমাৰ সৈতে কেইবাগৰাকী অতিথি আছে মই প্ৰথমেই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ডক্টৰ মনোজ শৰ্মা सर आपको स्वागत करती हूँ লগতে আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে দ্বিজেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্য তেখেতকো আমি অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো তেখেত হৈছে গুৱাহাটী সমৰ্পণ ধ্যান কেন্দ্ৰৰ আচাৰ্য আমি লগতে দৰ্শকসকলক জনাও যে আজি আমি সমৰ্পণ ধ্যান কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীতে আছে সেই অনুষ্ঠানটোৰ সন্দৰ্ভতো আজি আমি কথা পাতিম লগতে মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে অলকা দাস বাইদেউ তেখেত হৈছে জ্যেষ্ঠ সাধিকা লগতে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে ডক্টৰ সুকুমল কাকতি আপোনাকো অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো লগতে আজি আমাৰ সৈতে আছে অনিল বৰুৱা স্যাৰ তেখেতকো অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো আটাইকেইগৰাকীকে অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি যেহেতু কৈছো যে আজি আমি ধ্যানৰ কথা পাতিম ধ্যানৰ প্ৰয়োজনীয়তা ধ্যান কি সেই সন্দৰ্ভত জানিম আজি আমাৰ সৈতে যেহেতু আছে ডক্টৰ মনোজ শৰ্মা তেখেত হৈছে হিমালয়ান মেডিটেশনৰ ট্ৰাষ্টি লগতে তেখেত হৈছে এজন योगा इंस्ट्राक्टर तेखेत आयुष मिनिस्ट्री एजन स्वीकृतिप्राप्त योगा इंस्ट्राक्टर तेखेत जेहेतु आसे गतिके सर पहले तो आपको मैं पूछना चाहूँगी ध्यान क्या है और ध्यान हम लोगों को क्यों करना चाहिए जो ध्यान के बारे में समाज में धारणा है कि ध्यान बहुत ही कठिन चीज़ है और ध्यान के बारे में बहुत अलग अलग तरह की धारणाएं समाज में लोगों के बीच में है कि हम आम लोगों के लिए जो ग्रस्त हैं वो ध्यान नहीं कर सकते ध्यान कुछ साधु सन्यासियों के करने की चीज़ है लेकिन वास्तव में जो ध्यान का असली इसमें दो विरोधाभास ध्यान का जो असली ज्ञान है वो हिमालय में है और समाज में ग्रस्त लोग उस चीज़ को थोड़ा अपने आप को दूरी महसूस करते हैं लेकिन ध्यान का सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान का सिंपल अर्थ है कि वर्तमान में रहना प्रेजेंट में रहना ही मोमेंट टू मोमेंट प्रेजेंट में रहना ही ध्यान है ध्याনৰ अर्थ হৈছে বৰ্তমানত থকা हाँ वर्तमान में रहना ही ध्यान है इतना सिंपल है ध्यान बाकी हम उसको कठिन बना देते हैं अपनी सोच से लेकिन ये आम मनुष्य को करने की चीज़ है जिस तरह का वातावरण आजकल समाज में है तनावपूर्ण वातावरण है हर जगह इतना स्ट्रेस है चाहे तो हम बच्चों के एजुकेशन को लेके चाहे तो प्रोफेशनल को लेके चाहे तो हम दूसरी हमारे सामाजिक और व्यवहारिक जिम्मेदारियों को लेके और ये सब तो चलता रहेगा ये तो होगा ही क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे चारों तरफ रहेंगी लेकिन इन सब के तनावपूर्ण वातावरण में भी हम किस तरह शांत संतुलित और आनंद में जीवन जी सकें उसका एक रास्ता ध्यान से अच्छा कुछ नहीं हो सकता ऐसे डॉक्टर मैं मेडिसिन में प्रैक्टिस करता हूँ फिजिशियन हूँ लेकिन अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो मन को और शांत करे और आनंद से जीने की कला बताए डिजीज़ के लिए हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर से दवाई दे सकते हैं लेकिन हम अपने मानसिक संतुलन के लिए कोई दवाई नहीं ले सकते इससे अच्छी मेडिसिन कुछ नहीं है ध्यान ठीक है মই অকণমান আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ এটা কেন্দ্ৰ আছে সমৰ্পণ ধ্যান কেন্দ্ৰটো আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আমি ধ্যান কেন্দ্ৰটো আপোনাৰ 2011 পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত সনাতন ধৰ্মসভা তাতে প্ৰথম মহলাত আমাক অকণমান জাগা দিছে আমি তাতে আজি 11 বছৰৰ পৰা ধ্যান কৰোঁ বৰ্তমান আমাৰ দেওবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা ধ্যান আৰম্ভ হয় ইয়াতে সকলো ধৰণৰ মানুহ ইয়াতে আহিব পাৰে ইয়াতে কোনো জাতি ধৰ্ম বা এনেকুৱা খোৱা লোৱাত কোনো বাধা নাথাকে সকলো মানুহে আহিব পাৰে আৰু এটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে শিকোৱা হয় বিনামূলীয়াকৈ শিকোৱা হয় ঠিক আছে আপোনাৰ পৰা জানিলো বাইদেউ আপুনি ধ্যান কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই আছো যেতিয়াৰ পৰাই মানে চেণ্টাৰটো আৰম্ভ হৈছে
আৰু তাতে অহাৰ পৰা আমাৰ মানে বহুত মানুহ আহিছিলে আৰু এইটো যিটো বস্তু তেখেতে কৈছে মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক এটা হেৰি হয় আৰু এতিয়া সমাজখনত বহুত ধৰণৰ কিছুমান কথা আছে যাৰ কাৰণে আমি কিছুমান বহুত ষ্ট্ৰেছ ল'বলগীয়া হয় আৰু আমাৰ এই কেন্দ্ৰটো আমাৰ এতিয়া শনিবাৰ দেওবাৰ আৰু হেৰিবাৰে হয় বৃহস্পতিবাৰে হয় আমাৰ ৰাতিপুৱা 7:15 মানত আৰম্ভ হয় পুৰা এঘণ্টা আমাৰ হয় আধা ঘণ্টা মেডিটেশ্যনটো হয় আৰু এইটো তেতিয়া আমাৰ সকলো মানুহেই আহিছে মানে ডেকা মানুহ আহিলে আমাৰ চবতকৈ বেছি ভাল হয় কাৰণ য়ং জেনেৰেশ্যনটোহে আমাক দৰকাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল অলপ বয়সস্থ তেখেতসকলেতো বাৰু আহেই কিন্তু আমাৰ যিটো আজি বৰ্তমানৰ যুৱক যুৱতীসকলক যদি আমি এই মানে ধ্যানৰ যোগেদি যদি তেওঁলোকৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কাৰণে বহুত লাভদায়ক হয় তাৰ কাৰণে আমি বহুত হেৰি কৰিছোঁ আমাৰ চেণ্টাৰ অৱশ্যে বঢ়া নাই যিটো চেণ্টাৰ হৈ আছে তাতে আমাৰ যিসকল আছে আগৰ পৰা আমি সকলোৱে তাতে আহি ধ্যান কৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে নিজৰ মানে শৰীৰটোৰ পৰা গোটেইখিনিয়ে মানে আমাৰ লাভদায়ক হয় মই অকণমান অনিল বৰুৱা ছাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আমি ধ্যানৰ কথা পাতি আছোঁ ধ্যানৰ উপকাৰিতা আমি বুজিছোঁ যে আমি শান্তিৰে হাঁহিবৰ কাৰণে আমাক ধ্যানৰ প্ৰয়োজন হয় আপুনিও ধ্যানৰ লগত জড়িত কিন্তু আপোনাৰ ক'ৰবাত এনেকুৱা অনুভৱ হয়নে যে বিশেষকৈ আমি অসমবাসীয়ে ধ্যানৰ যিটো উপকাৰিতা বা যিটো প্ৰয়োজনীয়তা আমি অকণমান কমকৈ সেয়া অনুভৱ কৰি আছোঁ বৰ্তমানলৈকে আৰু অলপ প্ৰসাৰ বা প্ৰচাৰ আমাক লাগে ধ্যানৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰসাৰটো আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন আৰু এখেতৰ অহাৰ মেইন উদ্দেশ্য সেইটোৱেই আৰু ইতিপূৰ্বে আমি বহুত বছৰৰ পৰাই 2010 চনতে আৰম্ভ কৰিলোঁ ইতিপূৰ্বে আমি বহুত ধৰণৰ আমি শিবিৰ কৰিছোঁ সৰু সুৰা আগতে ডাঙৰ দুটামান কৰিছিলোঁ শিবিৰ 7 দিনীয়া পাছলৈ আমি তেনেকুৱা এদিনীয়া শিবিৰ তেনেকুৱা কৰিছোঁ যোৰহাটত আমি গৈ পেলাই সাহিত্য সভাটো তাতো কৰিছোঁগৈ এবাৰ গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো প্ৰচেষ্টাটো চলি আছে আৰু ধ্যানৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে এইটো ইমান তেখেতে ভালকৈ কৈয়ে গৈছে এইটো যিটো শাৰীৰিক মানসিক আধ্যাত্মিক আমাৰ উন্নতি হ'ব আমাৰ আত্মাৰ স্তৰত আমি আহি যাওঁ ধ্যান যেতিয়া কৰোঁ আৰু আমাৰ যেতিয়া আত্মসাক্ষাৎকাৰ হয় আমি আমাৰ চিন্তাধাৰা সকলো সলনি হৈ যায় সকলো সিদ্ধান্ত আমাৰ আত্মাৰ ফালৰ পৰা হয় আমাৰ সমস্যাবিলাক চব শৰীৰৰ লগত শৰীৰ ভাৱৰ পৰা আমি আত্মভাৱলৈ আহি যাওঁ আৰু সেই আত্মাৰ স্তৰত আমি যেতিয়া সিদ্ধান্ত লওঁ শুদ্ধ হয় আৰু মনোজজীয়ে কৈছে এইটো ধ্যানটো হ'ল মানে প্ৰেজেণ্টত যিটো আমি থকা বৰ্তমান থকাটোৱেই ধ্যান আচলতে হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এইবাৰ অকণমান ডাক্তৰ সুকোমল কাকতি ছাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি এগৰাকী চিকিৎসক মানে বিজ্ঞানত বিশ্বাসী তাৰ পাছত আপুনি এতিয়া ধ্যানৰ লগতো জড়িত ধ্যান আৰু বিজ্ঞানৰ সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা পোনপ্ৰথমে মই প্ৰতিদিনতে টাইমলৈ মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এতিয়া এলোপেথিক ডাক্তৰ মই ৰেলৱেত চাকৰি কৰিছিলোঁ 2015 চনত মই চিফ মেডিকেল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট হৈ পেলাই ৰিটায়াৰ কৰিলোঁ 2012 চনৰ আগৰ পৰাই মই যদিও মই এলোপেথিক ডাক্তৰ 2012 চনৰ আগলৈকে মই অন্য এটা আধ্যাত্মিক সংগঠনৰ লগত জড়িত আছিলোঁ তাৰপিছত 2012 চনত মই নিউ গুৱাহাটীতেই মানে মোৰ পষ্টিং আছিল 2013 চনত মোৰ পৰিয়ালত এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হৈছিল সেই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত মই মানসিক শাৰীৰিক মানে সকলো ফালৰ পৰা মই বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিলোঁ গতিকে তাৰ পৰা নিৰাময় পাবলৈ মই এটা উপায় বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ নিউ গুৱাহাটী কলনীত মোৰতো মানে পলিক্লিনিক আছিল মই ইফালে এতিয়া অহা যোৱা কৰিছিলোঁ
মই থাকোঁ ৰুক্মিণী গাঁৱত। তেতিয়া এদিন দেখিলোঁ এইখিনি পষ্টিং, তেতিয়া আছিল মানে এইখিনি আমাৰ অৱনী দাস ডাঙৰীয়াৰ এই ওচৰতেই আৰ্কিটেকচাৰ কলেজ আছিল। এই কলেজতে অৱনী দাস ডাঙৰীয়াই তেওঁৱে এই গুৱাহাটী সমৰ্পণ ধ্যান কেন্দ্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ এই আৰ্কিটেক্ট কলেজৰ চৌহদতেই এই চেণ্টাৰটো সমৰ্পণ ধ্যান কেন্দ্ৰটো আছিল। এদিন তেওঁ এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছিল, কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰিছিল আৰু মই আহোঁতে দেখিলোঁ। তাৰপিছত সেইদিনাখন আহিলোঁ, আহি পেলাই মই এই গুৰুজীৰ যি বাণী, যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শত মই সঁচাকৈ আপ্লুত হৈ পৰিলোঁ আৰু সেই 2012 চনৰ পৰাই মই এই সংগঠনৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলোঁ। মই যদিও এলোপেথিক ডাক্তৰ, আমাৰ মানে কৈছে হেল্থ ডেফিনেশ্যনত এজ পাৰ WHO কি আছে হেল্থ ইজ এ ফিজিকেল, মেণ্টেল, ছ'চিয়েল ৱেলবিং। কিন্তু আজিকালি তাৰ লগতে আৰু এটা যোগ কৰিবলগীয়া হৈছে স্পিৰিচুৱেল টু ৱেলবিং। ফিজিকেল, মেণ্টেল, ছ'চিয়েল ৱেলবিংটো লাগিবই, তাৰ লগতে আৰু ফ'ৰ্থটো লাগিব, চতুৰ্থটোত লাগিব তো স্পিৰিচুৱেল টু ৱেলবিং। স্পিৰিচুৱেল ৱেলবিং দেখা গৈছে যে স্পিৰিচুৱেল ৱেলবিং এইটো কি কাৰণত? মানসিক প্ৰশান্তিৰ কাৰণে, মানসিক শান্তিৰ কাৰণে। আজিকালি মানে এই 21 শতিকাৰ যুগত কম্পিউটাৰ, লেপটপ, মোবাইলৰ যুগত, এণ্ড্ৰইডৰ যুগত এতিয়া কি হৈছে, যিমানেই এইবিলাক মানে ইলেক্ট্ৰনিক্স মিডিয়ামবিলাক বাঢ়ি গৈছে, মানুহৰ মানে অশান্তি, অসূয়া, হিংসা, কাজিয়া এইবিলাক দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে। আমি ৰাতিপুৱা বাতৰি কাকত মিলিবই নোৱাৰোঁ, ৰাখিছে আজি অমুকতে মানে হত্যা হৈছে, অমুকতে ছুইচাইড হৈছে, অমুকতে গাড়ী মটৰতে যিমানেই বাঢ়িছে সিমানতে এক্সিডেণ্ট বাঢ়ি গৈছে, মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে। তেনেকৈ এইবিলাক কি কাৰণত হৈছে? এইবিলাক মানসিক অশান্তিৰ কাৰণে। মানুহৰ যিমানে উন্নতিৰ জোখত যিমানেই বাঢ়ি গৈ আছে, উন্নতিৰ জোখত যিমানেই আগবাঢ়ি গৈ আছে, সিমানে ধ্বংসৰ ফালেও বাঢ়ি গৈ আছে, মানসিক অশান্তি হৈ গৈছে। আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ আগতে যিবিলাক যিবিলাক কমিউনিকেবিলিটি ডিজিজ আছিল, বুজিছেনে? যেনেকৈ এইটো ৱাটাৰ বৰ্ড ডিজিজ, মেলেৰিয়া, জণ্ডিছ, টাইফইড, এইবিলাক ৰোগ বেছি আছিল। কিন্তু আজিকালি সেইবিলাক কৈছে ডেট ইজ কল্ড কমিউনিকেবল ডিজিজ। সেই বেমাৰবিলাক কমি গৈছে। এতিয়া মানুহ কৈছে যিবিলাক নন কমিউনিকেবল ডিজিজ সেইবিলাক দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। নন কমিউনিকেবল ডিজিজবিলাক কোনবিলাক? এইবিলাক হাইপাৰ টেনশ্যন, ডায়েবেটিছ, তাৰপিছত কিডনী ডিজিজ, মেণ্টেল মানে ইনষ্টেবিলিটি, অশান্তি, অসূয়া এইবিলাক দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে। আগতে হাইপাৰ টেনশ্যনটো এইটো নাছিলেই। হাইপাৰ ধাৰণান্তৰ কি আছিল? যিবিলাক ধনী কাণ্ট্ৰি, যিবিলাক মানে ধনী দেশ, পশ্চিমীয়া দেশ, উন্নত দেশ, সেইবিলাকৰ বেমাৰ আছিল। কিন্তু আজিকালি দেখা গৈছে যে এইবিলাক আমাৰ এই যে মানে আমাৰ ইয়াতে এজন সাধাৰণ মানে শ্ৰমিকৰো, এজন লেবাৰো মানে হাৰ্ট এটেক হৈ পেলাই ঢুকুৱা হৈছে, ডায়েবেটিছ হৈছে, কিডনী ডিজিজ হৈছে। গতিকে এই সকলোবোৰৰ পৰা আচলতে এইবিলাকত পাবৰ কাৰণে কৈছে, সেইকাৰণে হেল্থৰ যিটো চতুৰ্থ যিটো স্তম্ভ স্পিৰিচুৱেল মানে ৱেলবিং, সেইটো বহুত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। যিহেতু মই নিজেই ডক্টৰ, মই সেইটো মানে কৈছে ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, মই এতিয়া অভ্যাস কৰিছোঁ। আৰু যিবিলাক সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজেও এই যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, যিবিলাক লাইফষ্টাইল ডিজিজ বুলি কয়, লাইফষ্টাইল উন্নত হৈ গৈ আছে, কিন্তু এই মানে অসুখবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে। এইবিলাকৰ মুক্ত পাবলৈ কৰি এইবিলাক কমাই ৰাখিবৰ কাৰণে এইটো স্পিৰিচুৱেলটোৰ বহুত দৰকাৰ হৈছে। মানে এই সময়ত বহুত প্ৰয়োজন আছে, সকলোৱে ইয়াক মানে আঁকোৱালি লোৱাটো উচিত, খুব দৰকাৰী। सर मैं आपके पास आई हूँ, हम सब लोग मतलब समझते हैं कि ध्यान करना चाहिए, लेकिन जब ध्यान करने हम बैठ जाते हैं तब दुनिया भर की टेंशन मन में आ जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये एक देखो, ये बॉडी का स्वाभाविक व्यवहार है। ये बॉडी का स्वाभाविक सिस्टम है कि हम
जैसे खाना खाते हैं तो ऑटो मोड पे वो पचता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और हमारा हार्ट ऑटोमेटिक काम कर रहा है, हमारा किडनी ऑटोमेटिक फंक्शन कर रहा है, जिससे हमारे सारे ऑर्गन्स मिलके ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, हम उसमें कुछ भी बीच में इंटरफेयर नहीं करते, तो वो सब स्वतः होता है। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है उसका फंक्शन है थॉट करना, विचार करना, उसका एक नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन ध्यान क्या होता है, जब जैसे हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उसमें एंगेज रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई विचार इतना नहीं आता, तनाव इतना याद नहीं आता, क्योंकि हम उसमें एंगेज रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम आँख बंद करके या ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमें पूरे जो हमारे आसपास के जितने भी तनाव हैं, प्रोफेशनल हैं, हमारे सोशल हैं, हमारे पारिवारिक हैं, सारे तनाव एक साथ याद आते हैं। हाँ। और विचारों की तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उससे हमें बहुत डिस्ट्रेस लगता है, हम वो ध्यान करने का कोशिश भी नहीं करते। लेकिन इसको मैं एक बहुत ही सिंपल आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे एक कमरा है, इसमें अगर अभी ये जैसे आपका हॉल है, ये बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको क्लीन करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, झाड़ू से उसको साफ करेंगे, तो एकदम से धूल मिट्टी सब तरफ से निकलना शुरू होगी और एकदम से कमरा पूरा गंदा लगने लग जाएगा। लेकिन वो एक प्रोसेस है उसकी क्लीनिंग का, आफ्टर सम टाइम उस कचरे को हटा के हम बाहर फेंक देते हैं। ध्यान सेम ऐसा ही करता है, जैसे ही हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को वो रिसेट करता है। मतलब पूरी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी है उसको रिसेट करता है, शांत करता है, एक रेस्ट और रिलैक्स मोड में लेके आता है उसको। तो उससे पहले ये सफाई के प्रोसेस में बहुत सारे थॉट जनरेट होते हैं, बहुत सारा हमें दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो सफाई का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो वो सब हट जाएगा, जैसे कमरा फिर उसके बाद एकदम क्लीन हो जाता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस तो ऐसा होता है। तो ध्यान का पहला स्टेप ये कि आप ये उसका पहला पादान है कि हम जब ध्यान शुरू करते हैं तो विचार आएंगे ही, नेचुरल है वो। लेकिन अगर हम उस ध्यान को लगातार कंटिन्यू रखेंगे तो फिर धीरे धीरे वो सब विचारों की इंटेंसिटी कम होने लग जाएगी। जैसे मान लो अगर हम एक बार ध्यान करने बैठे तो शुरू में हमें 10 मिनट्स तक थॉट्स आते रहे, फिर थोड़ा सा पॉज आता है, विचार रुक गए, फिर हम दूसरे थॉट्स पे चले जाते हैं और फिर और आता है। लेकिन अगर हम ध्यान करने बैठते तो बीच में एक पॉज शुरू होता है, 10 मिनट का थॉट्स आएंगे, फिर 1 मिनट का पॉज हो जाएगा, आपको कोई थॉट्स नहीं आएंगे, फिर 9 मिनट तक आएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे उसका जो थॉट आने का प्रोसेस है वो लॉन्ग शॉर्ट होता जाएगा और थॉटलेस कंडीशन का टाइम इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, सिर्फ बैठने से ही नहीं, साइकिल चलाते वक्त भी ध्यान कर सकता है या कुछ अलग काम करने के वक्त भी ध्यान कर सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, एक्चुअली जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ही बताया था कि ध्यान करने का मतलब वर्तमान में रहना। लेकिन वो अभी जैसे आजकल ध्यान का दूसरा डेफिनेशन आ रहा है कि हम उसको मतलब एक अलग अलग तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं। कोई साइकिल चलाते हुए ध्यान, खाना खाते हुए ध्यान, और पार्क में घूमते हुए ध्यान, ये सब मोमेंट टू मोमेंट जो अवेयरनेस को रखने का प्रोसेस होता है। लेकिन एक्चुअली वो ध्यान नहीं है। ध्यान का सही जो डेफिनेशन है ये निर्विचारता की स्थिति को करने का प्रैक्टिस है। एक्चुअली समाज में ध्यान का मतलब ये है कि हम थॉटलेस कंडीशन में चले जाएं, निर्विचारता की स्थिति में चले जाएं, उसी को ध्यान समझते हैं। ये हम जैसे कि आप कोई प्राकृतिक स्थान पे जाइए घूमने के लिए, हाइट्स पे जाइए, आपके यहाँ पर बहुत सारे तवांग है या दूसरी अच्छी जगह हैं लोकेशंस, तो वहाँ पे जाते हैं हमको शांति फील होती है, अच्छा लगता है। या प्राणायाम करते हैं या दूसरी कोई चीज़ करते हैं तो हमें कुछ समय के लिए वो ऐसा लगता है कि हम उन थॉट से थोड़े दूर हो गए हैं, एक्टिविटी से दूर हो गए हैं। लेकिन वो एक निर्विचारता की स्थिति को पहुँचने का एक तरीका है। वो म्यूज़िक सुन के भी हो सकता है, म्यूज़िक से भी होता है, अच्छा दृश्य देखें, अच्छी जगह पे जाएं तो वैसे भी हो सकता है। या फिर हम बहुत सारी पब्लिक के भीड़ में नहीं रहें, थोड़ा एकांत जगह पे जाए, वहाँ पे भी अच्छा लगता है, फील आता है। लेकिन जो ध्यान का प्रोसेस है वो निर्विचारता की स्थिति से शुरू होता है, फर्स्ट स्टेप है वो मेडिटेशन का, वो ध्यान नहीं है। तो जो आप बता रहे हो मतलब किसी एक्टिविटी को करते हुए ध्यान करना, वो एक रिलैक्स रहने का तकनीक है, वो ध्यान नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मेडिटेशन। थैंक यू। মই এবাৰ অকণমান বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, আপুনি কৈছে মই আপুনি বহু দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে ধ্যানৰ লগত, গতিকে আপুনি ধ্যান কৰি আপুনি কি নিজৰ জীৱনত কি পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছে? একচুৱেলি ধ্যানটো কৰিলে মানুহৰ মানসিক বহুত উৎকৰ্ষ সাধন হয়। কাৰণ আমি যিটো মানে অন্তত আমি 30 মিনিট ধ্যান কৰিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিব লাগে। প্ৰথমতে তেখেতে কৈছে যে মানে আমি
ধ্যান কৰিয়েই যে কিবা পাই যাম এইটো নহয়, ইয়াত এটা টাইম টু টাইম কথা আছে। প্ৰথম হয়তো আমি 10 মিনিটো কৰিব পাৰোঁ, তাৰপিছত আমি ক্ৰমান্বয়ে বঢ়াই যাম। আৰু এই ধ্যানে আমাৰ কি কৰে, গোটেই মানসিক শান্তিটো আনিবই, আৰু তাৰ আমি ডিচিশ্যন কিছুমান আমি জীৱনৰ আমি শুদ্ধ ডিচিশ্যন কিছুমান ল'ব পাৰোঁ, যিটো নেকি এতিয়া আমাৰ এই সমাজত অকণমান খামখেয়ালি হৈ গৈছে। যিটো উঠি অহা প্ৰজন্ম, সেই বস্তুটো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী নাই। আৰু এইটো যদি আমি সৰুৰ পৰা সিহঁতক এই ধ্যানৰ মাধ্যমেদি সিহঁতক অকণমান আমি উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব পাৰোঁ, আমি হয়তো এই সমাজখনত কিছুমান আজিকালি যিবোৰ হৈ আছে ঘটনাবোৰ, সেই ঘটনাবোৰ কমি যাব। কিন্তু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে চেষ্টাও কৰিব লাগিব, আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে আমি একোটা মানে পৰিৱেশৰ আনিব লাগিব। আৰু এই ধ্যানটো মানে যে আজি ধ্যান কৰিছোঁ কাইলৈ মোৰ কিবা এটা হৈ যাব, এইটো নহয়। এই ধ্যানটোৰ এটা সাধনা, ধ্যান মানেই হ'ল সাধনা। সাধনাটো আমি সদায় আনিব লাগিব, কাৰণ প্ৰথম আমি মানসিকভাৱে যেতিয়া হয়তো যেনেকৈ আমাৰ ডক্টৰে কৈছে যে তেখেতৰ এটা ঘটনা ঘটিছিল, যাৰ কাৰণে মই মানসিক অশান্তিৰ কাৰণে তেখেতে এই ধ্যানত হেৰি কৰিছিলে। ঠিক তেনেকৈ সকলোৰে সংসাৰত থাকেই ঘাত প্ৰতিঘাত কাৰণে, চবৰে আছে। কিন্তু তথাপিও এই ধ্যানৰ মাধ্যমেৰে যদি আমি এই সমাজখনত থাকিব খোজোঁ, আমি এটা সুন্দৰ সুস্থ সবল জীৱন এটাও যাপন কৰিব পাৰিম, বিশেষকৈ সমাজখনকো আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম। সেইটোৰ কাৰণে আমি ধ্যানৰ প্ৰয়োজনীয়তাও বেছি ভাবিছোঁ। আৰু এই যিটো আমাৰ মেডিটেশ্যনৰ চেণ্টাৰ, এইটো আমি বহল কৰিবলৈ চেষ্টাও কৰিছোঁ, বহুতে আমি ভাবিছোঁ। গতিকে অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে যাতে মানে ভাল এটা পদক্ষেপ হয়, সেইটোৰ কাৰণে আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেইটোৰ উদ্দেশ্যেই আমি এই ধ্যানত সকলোৱে যোগদান কৰাটো উচিত। আৰু আমাৰ যিটো চেণ্টাৰ আছে, আমি সকলো ৰাইজকে আমি আহ্বানো কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে আহক। তাত আমাৰ ডাঙৰে কৈছে কোনো আমাৰ জাতি ধৰ্মৰ কথা নাই, খুব নিয়ম কানুনৰ কথা নাই। ৰাতিপুৱা আহি সুন্দৰকৈ বহি প্ৰথম কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আমাৰ আছে, সেইখিনি মতে চলি গ'লেই হৈ যাব, কোনো নিয়মৰ বাধা নাই। আৰু এই ধ্যানে আমাক সঁচাকৈ জীৱনত বহুত আনন্দ দিয়ে, সেইটো আমি এতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ মই আজি 11 সুখী হ'ব পাৰি। কাৰণ কৈছোঁ সকলোৰে জীৱনত থাকে কিছুমান, কিন্তু সেই তাকে তেতিয়া আমি কিছুমান বাদ দিবও পাৰোঁ কাম কিছুমান ধ্যানৰ মাধ্যমেৰে। সেইটোৱে মই ভাবোঁ আমাৰ ধ্যানৰ কাৰণে যে এতিয়া সময় আচলতে ধ্যান সকলোৱে লাগে, কিন্তু আমি এতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়া আমি এটা আমাৰ জীৱনৰ গতিয়ে শেষ হোৱাৰ পথত, কিন্তু এতিয়া উঠি অহা চামে যাতে এই নতুন প্ৰজন্মই এই দিশত আহে, সেইটোহে আমি আহ্বান কৰোঁ। হয় বাইদেউ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। हिमालयन मेडिटेशन क्या है, योग के ध्यान के साथ इसका संबंध क्या है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। हिमालयन मेडिटेशन को समझने के लिए एक पद्धति है ध्यान की, और उसके से पहले हम योग को समझें तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो योग की धारणा समाज में है अभी, तो वो योग को एक छोटी योगासन की तरह योगासन को योग समझते हैं आज समाज में, जबकि योग एक बहुत ही व्यापक अर्थ है। हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत प्राचीन विधा है योग, जो कालांतर में बहुत समय होने के बाद अभी सिर्फ शारीरिक व्यायाम को ही लोग बाग योग समझते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ये एक बहुत व्यापक अर्थ है योग का। इसमें हमारा जो शरीर है और जो हमारी आत्मा है, इन दोनों का एक हो जाना, मिलन होना, ये योग का सिंपल डेफिनेशन है। कि जब हमारी आत्मा हमारे शरीर के साथ एक हो जाए, उसके अंदर तारतम्य बन जाए, उसके अंदर उसका एक साथ उसका प्रभाव होने लगे, आत्मा का शरीर के ऊपर नियंत्रण होने लगे, तो वो योग की डेफिनेशन में आता है। तो हिमालयन ध्यान जो पद्धति है, ये बहुत ही प्राचीन 800 साल पुरानी हिमालय की ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने हिमालय में इसका आविष्कार किया था। बहुत प्राचीन पद्धति है। और इसके जो फाउंडर हैं श्री शिवगोपानंद स्वामी, वो बहुत कठिन मेहनत से, बहुत कठिन परिश्रम से, जैसे एक बार हमारी माइथोलॉजी में डिस्क्रिप्शन है कि इस पृथ्वी पे गंगा के अवतरण की आवश्यकता थी, और भागीरथी ऋषि ने बहुत हजारों सालों तक तपश्चर्या करी, और उसके बाद गंगा का अवतरण हुआ, और उससे आज तक हम सारी मानव जाति उसका लाभ ले रही है। ऐसे ही ध्यान की जो विधा हमारे संस्कृति में लुप्त हो चुकी थी, उसकी वापस उस ध्यान की गंगा को समाज में लाने का काम श्री शिवगोपानंद स्वामी जी ने किया। वो हिमालय की जो प्राचीन पद्धति थी उसको
समाज में बहुत ही साधारण व्यक्ति भी घर में रह के, गृहस्थ में रह के ध्यान कर सके, तो उसकी ये तकनीक हिमालयन मेडिटेशन है, जिसको वो यहाँ पर समाज में लेके आए। और आज पूरे विश्व के करीब 70 देशों में इसका पद्धति से प्रचार प्रसार हुआ है। और हमारे आपके आसाम एक बहुत पवित्र भूमि है, यहाँ से ही उनके जो मास्टर्स थे, उनके जो गुरु थे, उनके जो अधिकृत जहाँ से उन्होंने ध्यान पद्धति सीखी, यहाँ से ही वो निकल के गए। हाँ, और एक बात मैं पूछना चाहूँगी, ध्यान करते वक्त या करने से पहले या उसके बाद खाना का कुछ फूड कैसा खाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ध्यान है था ना, ये आत्मा से संबंधित होता है, शरीर से संबंधित नहीं होता। ध्यान आत्मा के विकास का एक तरीका है। तो जब हमारी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ध्यान का हम प्रयोग करते हैं, तो सभी तरह के नियम वगैरह सब उसमें फॉलो हो जाते हैं। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं कि कोई ऐसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस आसन में बैठना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसका ऐसा कुछ इस पर प्रभाव नहीं होता। लेकिन अगर अच्छा तरह से अच्छा खाना खाएंगे, साफ़ सुथरे अगर रहेंगे और अच्छी तरह से हम अपने शरीर को फिट रखेंगे, तो ध्यान करने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। हाँ, अभी भी हमारे समाज में ऐसा कंसेप्ट है कि अगर ध्यान करने कोई बैठ जाए तो वो घर संसार छोड़ देगी, ऐसा कुछ कंसेप्ट है अभी भी। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बताया। ये सच में ये धारणा है, लेकिन ये एक गलत धारणा है, क्योंकि इसको सही तरह से बताने वाले अभी समाज में नहीं आए थे। गुरुदेव ने पहली बार इसके बारे में बताया। ध्यान गृहस्थ के करने की चीज़ है, क्योंकि हिमालय में तो जो ऋषि मुनि, उनके आसपास का वातावरण तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन हम जिस वातावरण में रहते हैं, ये बहुत ही तनावपूर्ण और वैसा वातावरण है। तो उस वातावरण में अगर शांत और आनंद में रहना है, तो उसके लिए ध्यान, तो गृहस्थ लोग इसको आसानी से कर सकें, इसलिए ये पद्धति हिमालयन मेडिटेशन बनी है। बहुत ही सिंपल तरीके पद्धति है, जिससे गृहस्थ में और घर संसार में परिवार के साथ रह के ही ध्यान कर सकते। अब देखो, मैं करीब मुझे इसमें 18-20 साल हो गए, मैं भी गृहस्थ हूँ, मेरी भी पत्नी है और बच्चे हैं। हाँ। और गुरुदेव हैं, वो भी गृहस्थ हैं, उनके भी पत्नी हैं, उनके भी परिवार, नाते पोती सब फैमिली में रहते हैं। और हम सब तो घर नहीं छूटा, संसार नहीं छूटा। बाकी हम अपने प्रोफेशन में जो मेडिसिन का प्रैक्टिस है, वो उसमें हम अच्छे से, मतलब अगर हम 10% दे पाते हैं, उसमें 100% दे पाते हैं, और अच्छे से हमारे ही क्षेत्र में हमारी प्रगति होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, वो लोग कैसे ध्यान करें? देखिए, आज का वातावरण है, बच्चे जिस तरह से महसूस करते हैं आज के समय को, कि देखिए आज समाज में सारे बच्चों के पास सभी तकनीक उपलब्ध है, इंटरनेट के माध्यम से, एआई का ज़माना है। हाँ। तो जो नॉलेज कोई ऐसी नहीं है जो किसी से छुपी हुई है। कितनी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में और छोटे से छोटे स्कूल में सबके पास सेम बुक्स हैं, सेम नॉलेज है, और कोई भी सबके पास सब बराबर का ज्ञान है। तो सब ऐसा नहीं है कि वो आपका बच्चा दूसरों से अलग हो। सबके पास सब तरह की स्कूल की फैसिलिटी है, ज्ञान प्राप्त करने की फैसिलिटी, कपड़े हैं, व्यवस्थाएं सब है। लेकिन हमारे बच्चों में अलग क्या होगा ध्यान करने से, तो वो किस तरह उसको हेल्प करेगा। देखिए, आजकल समाज में सबसे ज़्यादा सुरक्षा का प्रश्न हो रहा है माता पिता को, कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे तो नहीं चले जाएंगे, कुछ गलत, या तो कोई जिस तरह का मानसिक व्यसन है, दूसरे तरह के व्यसन में तो नहीं पड़ जाएंगे, गलत संगत में तो नहीं पड़ जाएंगे, या फिर उनको कोई ऐसा तनाव तो नहीं आ जाएगा, स्ट्रेस तो नहीं आ जाएगा, एंजाइटी या डिप्रेशन या पैनिक में तो नहीं चले जाएंगे। और आजकल इस इंटरनेट के वातावरण में छोटी छोटी बातों को लेके बहुत बड़ी बड़ी स्टेप्स बच्चे ले रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है सुरक्षा का प्रश्न। जो क्या होता है, आंतरिक सुरक्षा, एक बाहरी सुरक्षा होती है, एक आंतरिक सुरक्षा होती है। ध्यान क्या करता है, हमें आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। वो अंदर से इमोशनली, मेंटली और मन से सशक्त हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी आत्मा के नियंत्रण में उसका शरीर चला जाएगा। तो आत्मा नियंत्रित शरीर जो अच्छा योग्य होगा वही वो करेगा। गलत संगत में जाने से भी उसको वो रोकेगी, और गलत डायरेक्शन में जाने से भी उसको रोकेगी, और उसका पूरा मानसिक विकास अगर अच्छा होगा, अंदर से वो सुरक्षित होगा, उसके ऐसे विचार अच्छे हो जाएंगे, मन अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, अंदर से सही निर्णय लेगा, और वो अपने करियर में या तो अपनी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर पाएगा। प्रॉब्लम तो सिचुएशन को हैंडल करने में ही है। हाँ हाँ। तो बच्चों को वो आंतरिक और मानसिक सुरक्षा देता है, जिससे बच्चे अपने ही जीवन में अच्छे से प्रगति कर पाएंगे। थैंक यू सर।
দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে চাগে গম পাইছে যে শিশুসকলৰ কাৰণে বা যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ বাবেও ধ্যান কিমান জৰুৰী হয় তেওঁলোকে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে ধ্যানে তেওঁলোকক কেনেধৰণে সহায় কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক যিহেতু আমাৰ সময় কমি আহিছে এই বিশেষ আধা ঘণ্টাৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ